مرزا صاحب یہاں بھی جو تشریح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک حکم فرما رہا ہے، وہ یہی فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. وہاں اپنا پرندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تزولا نہیں فرمایا. ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں جو زمین اپنا وہ ہوا اور اپنا زمین اور آسمان کے درمیان اڑتے ہیں، وہ چلتے ہیں، ان کے لیے ان تزولا نہیں فرمایا. پتہ چلا کہ تو قرآن پاک میں بھی ڈنڈی مارتا ہے. تیرے ماننے والے تجھ پہ سے لٹو ہوئے ہیں، عقل اللہ نے انہیں بھی نہیں دی. وہاں پرندوں کے لیے ان تزولا کا لفظ نہیں ہے، قتل نہیں ہے. یہ اپنا مرزا نے یہ جو پھکی والا ہمیں جواب دیا ہے نا، ہم نے تو پھکی کھا لی ہے، پر اصل پھکی اپنا محمد علی مرزا کو خود بھی کھانی چاہیے، کیونکہ اس کے پیٹ میں بھی جو مروڑ اٹھتے ہیں، جو ان کو تکلیف ہوتی ہے قرآن پاک کے احکامات کو بدلنے کی، حدیث پاک کے احکامات کو بدلنے کی، صحابہ کرام کے خلاف بھونکنے کی، یہ اسے بھی تکلیف جو ہے نا پیٹ میں، وہ خود پھکی کھا لے، وہ پھکی خود کھائے. اور گدھے کے بچے اللہ فرما رہا ہے ان تزولا، ان تزولا، ان تزولا. پرندوں کے لیے یہ لفظ نہیں ہے. امید ہے میرا جواب آپ کے لیے کافی ہے، اور ان سائنسدانوں کے لیے جو مسلمان ہیں، جو زمین کو ساکن کہتے ہیں، وہ تمہیں مانتے ہوئے تکلیف ہے. کئی غیر مسلموں نے بھی زمین ساکن ہونے کا کہا ہے، اور عین اللہ کے قرآن کے مطابق ہے. اگر زمین کسی طرف بھی پھرے، عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ پانی رک جائے. پانی زمین پہ 24 گھنٹے میں پھرو تب اوپر چڑھتا ہے، ساری کائنات تباہ ہوتی ہے. اور سال بعد گھماؤ تب بھی پانی اوپر آتا ہے، کائنات تباہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بچانے کے لیے زمین کا جو زاویہ بنایا ہے، اس کو ہماری عقل اسے سمجھ نہیں سکتی. سوچ سکتی ہیں اس پہ تشریح اور توضیح ہم اپنی وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن زمین کو ہم چلا نہیں سکتے، نہ ہی کوئی چلا سکتا ہے. جس نے چلنے کا زمین کا نظریہ پیش کیا ہے، اس نظریے کو مسلمانوں نے بھی کچھ نہ مانا ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں جو زمین کا ٹھہراؤ بیان فرمایا ہے اور آسمان کا ٹھہراؤ بیان فرمایا ہے، وہ ہم سے سب سائنسدانوں سے ہمیں افضل و اعلیٰ ہے. ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں. ہم کسی سائنسدان کو نہیں جانتے. ہمارا رب جو حکم دے وہی ہمارے لیے کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا ہے کہ زمین ساکن ہے، زمین ساکن ہے، زمین نہیں چلتی. اگر کوئی زمین کو چلانے کی کوشش کرے، سب سے بڑا جھوٹا لعین مردود وہی ہے. اور یہ آیات مقدسات سورۃ انبیاء سے، سورۃ فاطر سے، وہ آیا مقدسہ جس کا ترجمہ محمد علی انجینئر نے بدلنے کی کوشش کی، جس کی صحیح انجینئرنگ اسے کرنی نہیں آئی. ہے تو اپنے آپ کو انجینئرنگ کہتا ہے، اور ہے بھی پھکی فروش، اپنے پیٹ کی درد دور نہیں کر سکتا. یہاں میں پڑھ رہا ہوں، ہمیں زیادہ ترجمہ اور تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن پاک میں خود سننے والوں تم چلے جاؤ. سورۃ فاطر میں آیا مقدسہ نمبر 41 ان اللہ یمسک السماوات، بے شک وہ اللہ، بے شک اللہ ہی ہے جس نے روک رکھا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو. یہ صرف تشریح نہیں ہے، صرف اوپن لفظی ترجمہ، لفظی
वर्ड टू वर्ड, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ही ने, अस्समावात युमसिकुस्समावात युमसिकुस्समावात युमसिकुस्समावात, रोक रखा है आसमानों को, वल अर्द, और ज़मीन को अंतज़ूला, ये कि वो हिलें। अब दूसरा तर्जमा जो परिंदों के बारे में 29 पारे से मिर्ज़ा ने गलत बयानी से काम लेते पढ़ा है, वो तर्जमा भी सुनो। आवा लम यरऊ, वहां काफरों को खिताब है, या आवा लम यरऊ इलत तोइर फौकहुम साफातिन, क्या वो नहीं देखते, या सारी मखलूक को खिताब है, या जो मुनकर हैं उनको भी खिताब हो सकता है। वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर, पिछले लफ्ज़ जुमले से क्या वो जो इनकार करने वाले हैं उनके बारे में है, क्या उन्होंने नहीं देखा या वो नहीं देखते परिंदों को, इलत तैर, परिंदों की तरफ नजर नहीं करते, फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिदन, के फरिश्ते जो हैं आसमान पर अपने पर फैलाए हुए उड़ रहे होते हैं, फैलाए रहते हैं, पर फैलाए, फौक़हुम साफ़ातिन, ऊपर, फौक़हुम ऊपर होते हैं वो, साफ़ातिन पर फैलाए, फड़फड़ाए, नहीं भी कई अपना परिंदे जो हैं वो पर नहीं फड़फड़ाते, जैसे हील है, चील है, और अपना इसी तरह बाज है, जब वो ऊपर हवा में चला जाता है तो ऐसे एक दम पार खोल देता है, नहीं फैलाता, क्योंकि अब हवा के उस ज़ुमरे में चला गया जहाँ उसे फड़फड़ाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। इसी तरह और कई परिंदे अल्लाह ताला ने बनाए हैं जो थोड़े से ऊपर चले जाएं तो परों को फड़फड़ाते नहीं, कोई फड़फड़ाते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं तब चलते हैं, कहीं बिल्कुल सुकून से ऐसे उड़ते हैं, परों को हिलाते भी नहीं। उनको भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखानी थी। अब उस कुदरत के मुताबिक, अल्लाह की कुदरत के मुताबिक अल्लाह ने उसमें फरमाया कि आसमान में रहमान ने उन्हें ज़मीन और आसमान के दरमियान रोका हुआ है। अंतज़ूला का लफ्ज़ नहीं, तो अंतज़ूला का हमारा एक जगह ठहर जाना, यह कि ठहर जाए, ठहरे हुए हैं तो ठहरे हुए नहीं। युमसिकु समावाति, आसमान और ज़मीन के दरमियान हम भी ठहरे हुए हैं, हम भी चलते फिरते हैं, अल्लाह ने हमें भी ठहराया, सुकून दिया। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा, ऐ आदम और उसकी बीवी ज़ौजा, तुम दोनों आपस यहाँ ठहरो, सुकून दिया। सुकून का मतलब तो यही बनता है कि एक जगह बैठा रहा आदमी, सुकून का हमारा यही बनता है ना, लेकिन वो तो नहीं, हम चलते फिरते रहते हैं, हर वक्त सुकून में कहाँ रहते हैं। तो इसका मतलब है कि ज़मीन और दरमियान में जिसे अल्लाह ने सुकून अता फरमाया वो चलते भी हैं। अंतज़ूला हमारे लिए हुक्म नहीं, अंतज़ूला फरिश्तों के लिए हुक्म नहीं, अंतज़ूला ज़मीन के अंदर जितनी भी मखलूक है किसी के लिए अंतज़ूला नहीं। अंतज़ूला आसमान और ज़मीन दोनों के लिए है, अंतज़ूला दोनों के लिए। अल्लाह ने इसलिए तशरीफ़ फरमाई कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे उठकर नहीं तो है बना वो क्या कहते हैं, कोई यकीना भोर दें, नहीं यकीना भोर दें, नया तर्जमा निकाल दें। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अंतज़ूला वायकबिदन, नीचे ऊंचे चपकते रहते उड़ाते रहते हैं। यकबिद लफ्ज़ जो है परिंदे नीचे भी आते ऊपर जाते हैं, हाँ झुकते भी हैं, ऊपर भी चलते हैं, एक दूसरे के ऊपर झपकते भी हैं, अपना शिकार भी करते हैं। मा युमसिकुना इल्ला रहमान, ये अल्लाह ताला ने उन्हें, ये कौन है उस जो फरिश्तों को ज़मीन और आसमान में ठहराए हुए, किसने उन्हें इमसाक दिया है, ठहराया है, यानी इल्ला रहमान, अल्लाह ने, कि वो ज़बान आसमान के दरमियान
ادھر ادھر اڑتے ہیں، تو یہ جو ٹھہراؤ ان کے پروں کے ساتھ آ گیا ہے، تو یہ کس نے کیا ہے؟ الا الرحمن، مگر رحمان نے۔ لا ان تزولا لفظ نہیں فرمایا، ما یمسکوہن الا الرحمن، رحمان نے انہیں ٹھہرایا ہے۔ انہ کانا بکل شیء بصیرا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، ہر چیز میں نشانی ہیں دیکھنے والوں کے لیے، ہر چیز میں نشانیاں ہیں، ہر چیز میں نشانی ہیں دیکھنے والوں کے لیے۔ اب یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ مرزا محمد علی انجینئر قرآن پاک کا بھی ترجمہ جھوٹ بول کے بدل کے اس کی تشریح بھی غلط کر دیتا ہے۔ اللہ نے وہاں فرمایا ہے ان تزورا، یہ کہ وہ ہلیں، ہلنے سے اللہ نے انہیں منع فرمایا۔ فرشتوں کو اللہ نے ہلنے سے، اپنا پرندوں کو ہلنے سے منع نہیں فرمایا، امساک انہیں بھی دیا ہے، لیکن ان تزولا ان کے لیے نہیں، ان تزولا آسمان اور زمین کے لیے۔ اسی طرح یہ رب تعالیٰ نے کافروں کو فرمایا کہ کافر لوگ جو زمین کو گھماتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین کو ٹھہراؤ پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور آسمان کو بنایا ہم نے چھت، محفوظ چھت۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُورِدُونَ، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُورِدُونَ، حالانکہ وہ کافر لوگ ہماری ان آیات سے، ان نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ہماری ان آیات سے منہ پھیرے ہوئے ہیں کہ زمین کو اللہ نے سکون میں بنایا۔ اور مرزا اب قرآن پاک کی تشریح دوبارہ کر، ان آیات مقدسات کو دوبارہ پڑھ۔ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے برا نہ کہا کر کہ جو خود برا ہونا دوسرا بھی اسے برا نظر آتا ہے۔ تیری تو تشریح سے، قرآن پاک کی تفسیر سے پتہ چل گیا، قرآن پاک کی تشریح تو بدل رہا ہے۔ ان تزولا کو تو نے بیان ہی نہیں کیا، اور پرندوں کا وہ پھکی والا جواب ہمیں دے دیا۔ ہم نے تو پھکی کھا لیا، ہماری قبض تو ہوگی دور۔ اب تو پھکی فروش ہے، چلو وہ پھکی ہم نے اپنا کھا لی، کوئی تھوڑی بہت ہی نا کوئی قطرہ کو اپنے پیٹ میں ڈال لیا کر، اور ان تزولا کو دوبارہ تشریح کر کہ ان تزولا اللہ نے فرمایا زمین کے لیے اور آسمان کے لیے، ان تزولا اس کی کیا تشریح ہے؟ پھکی والے جواب تجھے بڑے آتے ہیں، ان تزولا کی تشریح کیا ہے؟ یا اپنے باپ سے زندہ ہے تو اس سے پوچھ لینا، نوجوان بچہ تیرا باپ میری عمر کا ہی ہونا ہے نا، اس سے پوچھ لے کہ ان تزولا کا کیا تشریح بنتی ہے ابا جان۔ جب مر گیا ہے تو اس کے لیے فاتحہ کہہ دینا میری طرف سے، لیکن قرآن پاک کو بدلنے کی کوشش نہ کر، نہ قرآن پاک کی طرف آیا کر۔ جی بدلے آئے تو پھر پوری قرآن پاک کی پوری آیات مقدسات کو، پوری آیا مقدسہ کو پڑھ لیا کر، پڑھ کے پھر جو تو کہے گا پھر ہم بھی تجھے مانیں گے۔ ایسے نہیں کہ چبڑ آدھا تو ترجمہ بیان کرے اور آدھے کو کھائی جائے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کو روکنے والا اللہ ہے۔ کس لیے روکا؟ ان تزولا، یہ کہ دونوں ہلیں۔ اب اس سے تو پتہ چلتا ہے آسمان جو ہے وہ بھی نہیں ہلتا، آسمان بھی نہیں پھرتا اور زمین بھی نہیں پھرتی، اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سورج، چاند، تارے جو بھی ہے وہ سب چلتا ہے۔ رہ نہ جاؤں، اب دوسری ویڈیو شروع ہو گیا، میں اگلی بات بھی کر لوں۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُورِدُونَ، حالانکہ وہ کافر لوگ ہماری ان آیات سے، ان آیاتها موردون، اعراض کرنے والے ہیں۔ اس میں فعل کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر اس میں فعل موردون، اور موردون پڑھتے ہم، موردون
मुंह फेरे हुए हैं, यानी जिन्होंने कहा कि सूरज जो है वो ठहरा हुआ है, सूरज जो है वो ठहरा हुआ है और ज़मीन चल रही है, वो मुंह फेरे हुए हैं अल्लाह की आयात से, अल्लाह की बताई हुई बातों से, अल्लाह के बताए हुए अहकामात से। अल्लाह ने फरमाया ज़मीन ठहरी है, आसमान ठहरा हुआ है, और मुसलमान मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर करते करते अपने पटरी से उतर गया। वाह अगला वाह वल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहार, वही रब है, वही अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को ठहराव में किया, ठहराया, आसमानों को और ज़मीन को ठहराया। और वही अल्लाह है जिसने पैदा किया अल-लैल, रात को, वन नहार, और दिन को। जो मैं तर्जमा बयान कर रहा हूँ, इस तर्जमे को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, अहमद ईसा का नाम आ जाता है छबल का, लानतुल्लाह अलैहि। जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ने तर्जमा किया है वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। अंतज़ूला की तशरीह नहीं उसने की, इसलिए मैं उसे लानती कह रहा हूं कि अंतज़ूला की दोबारा तशरीह करे और तौबा करे कि मैं अल्लाह के कुरान की गलती से तशरीह गलत कर बैठा था। और वाकई कुरान पाक में जहाँ कहीं भी आता है ज़मीन ठहरी हुई है, और जहाँ कहीं भी आता है सूरज, चांद, सितारे सब चलते हैं। वह शम्सा वल कमरा दाइबैन, हमने सूरज और चांद को चलने वाला बनाया। दाइबैन, दाइबैन दोनों चलते हैं। दाइबैन भी इसमें फ़ैल का तस्निया का सीगा है। दाइबैन व शम्सा वल कमरा दाइबैन दोनों चलते हैं। वह शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा तक़दीर अज़ीज़ अलीम, बेशक सूरज और चांद चलते हैं और अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक चलते हैं। तक़दीर अज़ीज़ अलीम, अल्लाह की जो कुव्वत और ताकत से कानून बनाया है उस कानून के मुताबिक चलती हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन के चलने का कहीं कहा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मैंने ज़मीन को सुकून बनाया, ठहरा दिया। अंतज़ूला ये कि वो चले, नहीं चलती ज़मीन, इतनी काफ़ी है। या वो आयत पाक की तशरीह रहेगी, वहुवल्लज़ी जअला वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्सा वल कमर, वही रब है जिसने रात को पैदा फरमाया और दिन को पैदा फरमाया, रात को पैदा फरमाया और दिन को पैदा फरमाया। वश्शम्सा, सूरज को पैदा फरमाया, वल कमरा, चांद को पैदा फरमाया, वश्शम्सा, सूरज को पैदा फरमाया, वल कमरा, चांद को पैदा फरमाया। कुल्लुन, हर एक, यहां कितनी तशरीह हुए? लैल, नहार, शम्स, कमर, चार चीजों की। और अरबी का ये कायदा है, दो से ऊपर निकल गया तो जमा हो गया। ये चार चीजों का जिक्र है, चार चीजों का जिक्र है। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैल, एक, वन नहार, दो, वश्शम्सा, तीन, वल कमरा, चार। चार चीजें आ गई और जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ। अल्लाह ने फरमाया कुल्लुन, हर एक, कुल्लुन, हर एक, फी फलकी यस्बहून, आसमान में चल रहे हैं, आसमान में चल रहे हैं। ओ मिर्जा, ये भी तशरीह कर, हर एक आसमान में चल रहा है। फी फलकी यस्बहून, तैर रहा है।
आसमान में तैर कौन रहा है? सूरज। आसमान में तैर कौन रहा है? चांद। रात भी आसमान के तैरने से सूरज को मगरब की तरफ ले जाती है, मशरक़ की तरफ ले जाती है, रात दिन होता है। इसलिए अल्लाह ने पहले रात दिन का जिक्र फरमाया, रात दिन का जिक्र फरमाया, फिर फरमाया सूरज और चांद का, जिनके सबब रात होती है। टोटल चार हो गए। आगे रब ने वही जुमला जमा का इरशाद फरमाया, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। हर एक आसमान में तैर रहा है, चल रहा है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा है। मिर्जा तू भी तस्बीह पढ़ी कर। तस्बीह का माना क्या होता है? दाने पिदाने में मटका पड़ कर सटते जाना और तस्बीह घुमाते जाओ, घुमाना। तस्बीह का माना लुग़वी है घुमाना। ये बाप तफील की मस्तर है, घुमाए जाओ, घुमाए जाओ। अक्ल के ऊपर पर्दे डाल दो। इस तरह लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर अक्ल पे तो पर्दे नहीं पड़ेंगे ना। वो तो कहेंगे कि इसने तो पूरा तर्जमा ही नहीं किया। जिन्हें पता था उन्हें पता चल गया कि तूने बड़ी डंडी मारी है। अन तज़ूला का तर्जमा अपने बाप से पूछ ले, दोबारा पूछ ले। अन तज़ूला का माना इन्नल्लाह युम्सिकुस समावाति वल अर्दा अन तज़ूला, इसका तर्जमा दोबारा पूछ। और फिर ये भी तशरीह कर। यहाँ ये सूरत अंबिया की मैंने आया मुक़द्दसात पढ़ी है। कितना तक? बत्तीस तक। तीस से शुरू हुआ हूँ, 30 आया का 30 से शुरू हुआ हूँ और 32 तक मैंने पढ़ी है। 32 तक। इन आयात मुक़द्दसात का भी ज़रा तर्जमा कर और तशरीह कर, और फिर तुम्हें शायद तेरे लिए राह, अल्लाह की राह, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह जो खुल जाए। कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आसमान और ज़मीन को मैंने रोक रखा है। इसलिए रोक रहा है अन तज़ूला, ये कि वो हिले। परिंदों को ये अल्लाह ने हुक्म नहीं फरमाया। जो तूने पक्की वाला जवाब दिया ना, वो तूने गलत दिया है, बिल्कुल गलत दिया है। क्योंकि डेढ़ तेरे में, पेट तेरे में, शिकम तेरे में तकलीफ़ थी, बतन तेरे में तकलीफ़ थी। तूने अपने बतन की तकलीफ़ दूर नहीं की, दूसरों को पक्की ज़रूर दी है। ये पक्की दूसरों को देने के बजाय पहले अपने पेट की पक्की सही कर लिया कर, ताकि तेरा हाजमा सही हो। और तेरा हाजमा दुरुस्त नहीं होता तो फिर तुझे पूरे अल्फाज भी नज़र नहीं आते, पूरे अल्फाज भी नज़र नहीं आते। इन अल्फाज को देखने के लिए थोड़ा सा पक्की की एक तरी खुद पहले खा लिया कर। कुरान पाक पे बैठने से, यानी दरस शुरू करने से पहले पक्की खा लिया कर। अब अन तज़ूला का तर्जमा इसका तुमने दोबारा बताना है। साइंसदानों पे नहीं जाना, साइंसदानी बाद में लेंगे हम। पहले कुरान पाक, पहले तूने कुरान पाक और अहादीस मुबारका की तशरीह सामने रखनी है। अगर तूने ये नहीं रखी तो तू अपने बाप का नहीं है। अगली वीडियो मेरी इससे सख्त आएगी, ये ज़हन में रख। अगली वीडियो इससे ज़्यादा सख्त आएगी क्योंकि तू कुरान मजीद के भी खिलाफ है। और मुफ्ती साहब वो आपके खिलाफ जो उन्होंने 100 सबूत झूठ तेरे साबित किए ना, वो भी सही है। हत्ता कि तू कुरान पाक को बदलने से बाज नहीं आता। कुरान पाक को बदलने से तू तो कहता है मैं आलम नहीं हूँ, तालिब इल्म है। तो तालिब इल्म तो सीखे, पहले किसी से अच्छे से पढ़ ले, पहले पढ़ ले, उससे पूछ ले उस्ताद जी, जरा भी उस्ताद को बनाए, उस्ताद जी अन तज़ूला का माना मुझे समझ नहीं आया और मुझे ये समझा दो। मुझसे समझ ले, मैं तुझे समझा देता, फिर तू उसकी तशरीह कर, फिर उसका बयान कर। किसी उस्ताद से जो पढ़े ना वो ऐसे ही होता है जैसे तू, जिस तरह अहमद ईसा कहता है मेरा उस्ताद कोई नहीं, तो वो कुरान पाक की आयात मुक़द्दसात को ऊपर देख कर भी नहीं पढ़ सकता। वो इंतहाई जहल और गधे का बच्चा है और तुझे भी कहता है मेरा उम्मती बन जा। अगर तेरे अंदर इस्तिकामत होती तो वो तुझे कभी नहीं कहता। तू ज़्यादा मिर्ज़ाइयों को फॉलो करता है,
बरेलवियों पर फोकियत मिर्ज़इयों को दे दी, इसलिए तुझे कुरान नहीं आता, क्योंकि कुरान से सबसे ज़्यादा मोहब्बत, रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत, रसूल से सबसे ज़्यादा उनस सिर्फ़ और सिर्फ बरेलवी लोग करते हैं। कुरान पाक थोड़ी सी फौतगी हो जाए तो पहले कुरान पाक पढ़ो फिर खाएंगे। सारी महफिल में पहले कुरान पाक पढ़ो फिर खाना खाएंगे, पहले कुरान पाक फिर दफनाएंगे, कब्र में रखकर पहले कुरान पाक फिर कब्र की मिट्टी डालेंगे। ये बरेलवियों का अकीदा है। पहले कुरान पाक फिर मिट्टी डालनी है, मिट्टी डल गई अब जाने लगे फिर कुरान पाक फिर दुआ। ये बरेलवियों का अकीदा है, ये बरेलवियों का अकीदा है। हर जगह तो कुरान पाक को वो मद्देनजर रखती है। तुझे तो कुरान पाक का मैं कहता हूँ वो तशरीह तर्जमा तो तुझे आ जाता है, लेकिन तुझे हवा नहीं लगी, पूरी तरह अल्फाज तेरे जहन में आते नहीं, तुम्हें पूरी तरह अक्ल आती नहीं। अल्लाह ताला घुमा रहा है, अल्लाह ताला ने रुका, मैंने रोका हुआ है, मैंने ज़मीन को रोका, आसमान को रोका, खड़े हैं तजूला ये कि हिले वो, अल्लाह ताला ने रुका है, मैंने रोक रखा है। तू ऐसी कोई एक आया मुकद्दसा अल्लाह की निकाल के दिखाना जहाँ फरमाया अल्लाह ने कि ज़मीन भाग रही है, ज़मीन चल रही है। कोई एक आया मुकद्दसा बता, कोई एक आया मुकद्दसा जहाँ कहीं भी होगा। सूरज और चाँद का होगा, उसके अंदर सितारों का होगा, जहाँ कहीं भी। वश्शम्सा वल क़मरा दाइबैन, वश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, चाँद और सितारे और कमर अपने अपने महवर में चलते हैं। ज़मीन को कहाँ कहीं अल्लाह ने फरमाया नहीं कि ज़मीन चलती है। एक आया मुकद्दसा निकाल के दिखा। अगर तूने तशरीह बदली, अपनी तरफ से तशरीह की, सीधा सीधा कुरान पाक की आयत बता, तशरीह बदली, फिर लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तुझ पर बिल्कुल साबित आई सादिक आई, ये सादिक तुझ पर आती है कि कुरान की तू तशरीह बदलता है, कुरान का तू तर्जमा बदलता है, तर्जमा भी तू सही सुनाए तो तुझ पर एतराज़ हो जाएगा। अनतजूला वहाँ तू नहीं है, परिंदों में उड़ने में अनतजूला अल्लाह ने फरमाया ही नहीं। आएगा तुझ पर ये एतराज़, पुत्र आएगा। जो तेरे सुनने वाले ना, अगर मेरी ये वीडियो सुन लेंगे ना, तो मिर्ज़ा तेरे सामने ये सवाल रखेंगे कि ज़मीन के लिए तो फरमाया अल्लाह ने अनतजूला, ज़मीन के लिए फरमाया ना अनतजूला, तो फिर अपना परिंदों के लिए अल्लाह ने अनतजूला नहीं फरमाया। मा युमसिकुन्ना इल्ला रहमान इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर। ये अल्लाह की निशानी है, अल्लाह ने जो बनाई है परिंदों को उड़ना, तो ये तो आँखों वालों के लिए है कि हवा में वो उड़ रहे होते हैं। अल्लाह ने उनको हवा में चला दिया तो सुकून से वो चल रहे होते हैं, बाद पर नहीं फड़फड़ाते, चल रहे होते हैं और आसानी से। चील है, बाज है और कई परिंदे हैं, जब वो हवा में ऊपर उड़ जाती हैं तो अपना परों को नहीं हिलाते, नहीं फड़फड़ाते। इसका मतलब है कि अल्लाह ने फरमाया बसीर, देखने वालों के लिए, आँखों वालों के लिए अपना ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। यहाँ भी अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्दा अन तज़ूला। अगर वो हिलने लगा, अगले पूरी आया मुकद्दसा की पूरी तशरीह तू नहीं करनी है मिर्ज़ा, साथ तौबा का ऐलान भी करना है कि मैंने गलत तशरीह की थी। अहमद रज़ा खां बरेलवी की किताब को जो मैंने मैंने बोरी है वो सही लिखती हैं। अल्लाह के कुरान के मुताबिक सही उन्होंने कहा है कि ज़मीन साकिन है, ज़मीन साकिन है, ज़मीन साकिन है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियरिंग जहलमी, अगले जहलमी भी कह देती हैं, चलो मैं नहीं कहता। अल्लाह ताला तुझे हिदायत अता फरमाए और जन्नत नसीब फरमाए। कुरान को ना बदला कर, वरना वाकई तू जहलमी हो जाएगा। कुरान पाक की अगर तुझसे गलती हो जाए तो तौबा की कर, कुरान पाक की। हमसे ना अल्लाह से, या अल्लाह मुझसे जो ख़ता हुई है वो माफ़ फरमा। यह ख़ता हुई है कि कुरान पाक की पूरी बात मैं लोगों तक नहीं पहुंचा सका, अब मेरी रहनुमाई किसी ने कर दी है, तो या अल्लाह मुझे तौबा करने की तौफीक अता फरमा। अंतज़ूला व इन ज़ालता व इन ज़ालता व इन ज़ालता, अगर वो दोनों हिलने लगें
بس اگلی تشریح تو نے بتانی ہے. پرندوں پر یہ مصداق دے کے ہمیں پکی نہیں دینی، خود پکی کھانی ہے تاکہ تیرا ہاضمہ بھی درست ہو جائے. یہ خود تو نے پکی کھانی ہے. پکی کھا کر پھر تو نے اپنی تشریح کرنی ہے. تشریح وہ تشریح جو قرآن کے عین مطابق ہے. اور ان انبیاء، سورت انبیاء کی ان آیات مقدسات کو بھی سامنے رکھ کر وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. اپنی انجینئرنگ نہیں کرنی. جو سائنس میں تم نے پڑھا ہے وہ تم نے بیان نہیں کرنا. جو قرآن نے کیا ہے وہ بیان کرنا ہے. سائنس میں میں نے بھی وہی پڑھا ہے جو تیرا نظریہ ہے. میں نے بھی وہی کچھ سائنسدانوں سے سیکھا ہے جو تیرا نظریہ ہے. میں خود ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات ہوں. میں نے بھی بی اے تک انہی سائنسدانوں کے رگڑے کھائے ہیں، ان کے لیکچر لیے ہیں، ان کے لیکچر کو جانتا ہوں. میں بھی سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ لیے. تو 19ویں اسکیل پہ پہنچ گیا ہے یا 20 میں پہنچ گیا ہے تو یہ بھی اللہ کا کرم سمجھ، لیکن قرآن پاک کو نہ بدل. یہ دوبارہ تشریح کر، مہربانی تیری ہوگی. اگر تو تشریح نہیں کرے گا تو پھر اسی کیٹاگری میں ہے جس میں احمد عیسیٰ تجھ کو پکارتا ہے. گدھے کے بچے، پھکی فروش. میری بات کو، یعنی احمد عیسیٰ بھی تیرے اوپر نظر لگائے ہوئے. وہ کہتا ہے تو میرا امتی بن جا. حالانکہ احمد عیسیٰ حرام زادے کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. بالکل جہل اچاڑ، جیسے کہتے اجاڑ جہل، وہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بھونک رہا ہوں. حروف تہجی کا بیان کرتا ہے. الف پہلے آ گیا نا تو اس کا ہمارا آ ہو گیا. ایسا نہیں. تو بے شک اپنے علم کے مطابق چل. اللہ نے تجھے علم